कारण प्रतिभाएं या तो उनका निराशा में चली जाती हैं, कहीं कहीं तो खुदकुशी तक भी हो जाते हैं। एक दो उदाहरण मेरे सामने हैं, इसीलिए मैं ये उठा रही हूँ। और शिक्षा में हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत पीछे हैं। एक भारत के विश्व की अगर 100 यूनिवर्सिटीज में देखें तो गिने चुने ही यूनिवर्सिटीज भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी नहीं करते। तो ये जहाँ भ्रष्टाचार होगा, जहाँ प्रतिभाएं तो हैं बहुत सारी हैं, लेकिन प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं से कई सारे कारण हैं जिनके कारण पलायन करवा दिया जाता है। और कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, जैसे हमारे पास पर्याप्त संसाधनों का भी न होना, सॉल्व कर लिया जाता है। जातिवाद होते हैं, पलायन होता है, विद्यार्थी लाइब्रेरी नहीं जाते हैं। नहीं, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कैसे सॉल्यूशन देंगे? सर, विद्यार्थी लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कहीं कहीं संसाधनों की भी कमी है। जैसे कि मैंने उदाहरण भी दिया कि अगर हम अपने ही सेंट्रल लाइब्रेरी में देख लें, मैं यहाँ नियमित तौर पे अध्ययन करती हूँ, लेकिन अगर कभी बहुत दूरी के कारण हम पुस्तक निकाल के ले जाना चाहें तो वैसी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको इशू कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। बहुत सारे, चूंकि मैं शिक्षिका भी रही हूँ, तो इसलिए मैं देखती हूँ कि बहुत दूर दूर के जो विद्यार्थी आते हैं, काफ़ी उनको दिक्कत उठाना पड़ता है। वो लोग आते हैं, कभी कुछ विद्यार्थी तो फॉरबिसगंज से भी आते हैं, जिनका 3-4 घंटे का समय और 3-4 घंटे जाने का समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए संसाधन सिर्फ यही की कमी नहीं है, अन्य भी बहुत जगह है जहाँ पे कमी है, और उसके कारण कहीं ना कहीं प्रतिभाएं बाधित होती हैं। और सर, थैंक यू सो मच। We are running much behind schedule. Various head of the department, respected teachers, senators, and the students. This session was inaugurated around 11:20. It is getting about 5. Just a 30-minute gap in lunch break. So it is too taxing and it is too much. And the artists are waiting for their presentation. Everything has to be dismantled for their performance. I won't take much time. मैं बहुत समय नहीं लूँगा। I would like to present before you present scenario and few suggestions that are listed in this slide. And I am thankful to my son, who is an engineer in Farakka, and another my student who is in 3rd semester. I asked both of them to try and post the material for me. I guided them. They put it here. Then I asked my computer self, Mr. Kanam, to intermix together, which I am presenting you. The engineer is Mr. Saqib Ali, and the student is Gulabsan Praveen. So I thank both of them to make me enabled to present before you. आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं इन दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आप सबों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी देर तक आप यहाँ पर हैं। So, just it is their welcome to Silver Jubilee seminar, which you are enjoying since then, and I think the convener will arrange for some snacks also in the evening. क्या नरेश बाबू, लगातार 6 घंटा बिठाएंगे तो कुछ शाम का नाश्ता वास्ता होगा भी चलेगा सर। वाह, थैंक यू वेरी मच। This is the topic for which we are discussing today: higher education scenario, changing scenario and challenges. Just I will move faster. This is the situation. As I said in the earlier inaugural session, if the foundation is weak, अगर बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत बुलंद नहीं होगी, और हल्का झटका ही उसको पलट देगा। So the level of education in our country, in our state, in our district, in our university is based on primary and secondary, and that are most neglected. You see the baseline. The baseline is the pre-primary, then the primary, then the upper school, secondary, senior secondary, then comes the intermediate, PG, PhD, and other things. That what our students, Sonam Singh was pointing, and our Professor Ghosh also pointed
pointed out of the seminar where Karnataka fellow told that there is outsourcing of PhD. It is a disease, rather it is a infectious disease which is spreading like anything because the serious students are not there. So it is just the scenario that the baseline is provided by primary, pre-primary, middle, secondary, then higher secondary, and from there there is diversity. Whether one wants to go to the legal side, whether one wants to go to the technical side, whether one wants to the medical side, whether one wants to go to the biomedical side or the biotechnological side, so they can diversify accordingly. We can very well imagine since 1951 to 2017, you see the graph. नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? So just bar buddies you can find out the length. More than 4 times it has increased. Enrollment अगर लाख में देखेंगे तो देखिए कितना चला गया, आप वहाँ से देखिए नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कीजिए 51 से लेकर के 2070 में. So we have grown. We are not stagnant. हम अस्थिर नहीं हैं, हम ढील नहीं बने हैं, हम तालाब नहीं बने हैं, जो कि हमारे उद्घाटन सत्र में भी हमारे मुख्य अतिथि बोल रहे थे. हम बह रहे हैं. धारा स्लो है. ये भले धारा धीमी है लेकिन प्रवाह है, तो धारा को तेज करने की जरूरत है. Likewise, you can see the number of colleges and the number of degree being awarded by the universities and institutions. One is in pink color, another in the black color. You see, they are moving parallel, and it is keeping pace. Certainly, the degree award has gone down as compared to the number of colleges. That's why the enrollment ratio has gone down. On international basis, we are about 6% below the world average. अलबत्ता नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर मोर, नंबर ऑफ कॉलेजेस आर मोर. बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, संख्या भी ज़्यादा है. उसके बावजूद इनरोलमेंट रेशियोज होता है 18 से 23 के बीच वालों में, उसमें हमारी गिरावट आई है. यू कैन वेरी वेल सी दैट द पिंक ग्राफ हैज गॉन डाउन एज कंपेयर्ड टू द ब्लैक. प्रीवियसली इट वाज हायर. You see the percentage of state universities, about 41%. जितनी यूनिवर्सिटीज हैं अगर 100 मान लें तो 41% हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी है. दूसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी लगभग 29%. तो ये कितना राइज कर रहा है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इज पिकिंग अप. पीपल आर पुटिंग मनी. दैट आई टोल्ड इन द अर्लियर सेक्शन ऑल्सो दैट दे आर मेकिंग इट एज एन इंडस्ट्री. So see the private players, they are increasing like anything, followed by deemed university, it is about 14%, then is the institution of national interest about 11%, and hardly 5% is the ratio of central universities. And most of the central universities, they are able to keep the pace with the development. At least they are far ahead than the state universities, because most of the central universities, they are predominantly residential universities. If talk of JNU, 95% of the students enrolled in JNU are lodged in hostels. हमारे यहाँ 1% भी नहीं है. तो कैसे 24 घंटा का 24 घंटा इस्तेमाल करेंगे. छात्रा बता रही थी सुपौल से आएगा, किशनगंज से आएगा, निर्मली से आएगा एमए का क्लास करने के, एमएससी का क्लास करने के. 3 घंटा आने, 3 घंटा जाने, क्लास हुआ नहीं हुआ तो फिर तो थक जाएगा, वो पढ़ेगा. There is problem also. Even when I talk of my college where I was an alumnus along with that my alma mater, that college was started in 1883. It was fully residential. एक विंग में उधर स्टूडेंट आ रहा है अपर फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर इज ऑल्सो अटैच्ड टू द कॉलेज, अपर फ्लोर इज ऑल्सो अटैच्ड टू द कॉलेज, इवन द सेकंड फ्लोर इज अटैच्ड टू. वो रह रहा है सीधे क्लास में आता है, क्लास का रूम में चला जाता है. That was the reason why they were having enough time to study. अभी क्या हुआ है कि नंबर तो इंक्रीज किया है, लेकिन उसके साथ साथ सिमिलरली नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द अवार्ड ऑफ डिग्री, you can very well imagine the situation.
स्टेट वाइड नंबर ऑफ कॉलेजेस, आई डोंट नो वेयर इज बिहार, बिहार देखिए कितना कम है। और यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश, भारत में 24, अगर 12 करोड़ हम हैं तो 24 करोड़ वो है, तो डबल होने चाहिए हमसे, लेकिन कहाँ डबल। बिहार देखिए चौथे नंबर पर है, फ्रॉम लेफ्ट यूसी का उत्तर प्रदेश। 38 जिले हमारे पास हैं, उनके पास 80 जिले हैं। हमारे पास 40 एमपी के सीट हैं, उनके पास 80 हैं। 50% तो है भाई, तो फिर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम 50% क्यों नहीं, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। We were far ahead in 1970 or 72 when India celebrated silver jubilee of its independence. 1972. Bihar used to be the second state. Chairman Sahab, Bihar used to be the second state in educational status, industrial development, per capita income, everything. Now it is last but one. So from 1972 to 2019, we have improved a lot. We have plenty of roads and national highways, and still we have not kept pace with the other states. That's the problem. Similarly, the situation, gross enrollment ratio, you can very well imagine, it has gone down, then again now it is picking up. Similarly, the situation of the girls enrollment ratio आप कंपेयर करें, 14,28, जब आबादी आधी है, आधी आबादी बोलते हैं, तो इनरोलमेंट रेशियो तो होने चाहिए ना, उसके बराबर के करीब होने चाहिए। जब दोनों स्टूडेंट है, दोनों के पॉपुलेशन बराबर है, तो फिर कहाँ है? आप अंदाज कीजिए, वो 29 है तो ये 14 है, कंपेयर कीजिए। 14,28, लड़कों के 50% ही लड़कियां इनरोल्ड हो, कैसे समाज सुधरे? बिहार इज टेकिंग अप द इशू एंड इट हैज इनिशिएटेड मेनी प्रोग्राम्स सेंटर्ड ऑन द वुमेन। अभी जो ग्रेजुएट लड़कियां होंगी, जो हुई हैं अप्रैल 18 से लेकर के आज तक, जो भी ग्रेजुएट हुई हैं, किसी भी सेशन की हो, 25,000 रुपये दी जाए। सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उनके पूरी पढ़ाई का खर्चा भारत सरकार देगी। कोशिश तो है, 33% बिहार में आरक्षण देगा नौकरियों में, बिहार ही पहला है। पंचायती राज में 10 साल पहले से ही ये दे चुका है, जबकि दूसरे राज्य इसको इम्बाइब कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, बिहार की नकल कर रहे हैं। वी आर पिकिंग अप बिकॉज वी were pushed aside. The national share in the budgetary, Bihar was pushed behind. That's why we could not keep pace in educational and other aspects. These are the challenges. This quality we were discussing, our earlier speaker Dr. Rahman was also talking. Poor quality of education in many institutions. क्यों poor है? उसमें 4 शेयर होल्डर है। इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर है, फॉलोड बाय टीचर है, फॉलोड बाय स्टूडेंट्स है, देन इज द पेरेंट्स है। ये चारों में इंटरेक्शन है ही नहीं, चारों 4 दिशा में गुजरे, और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। That's the reason why the serious students are not taking up the higher education. बीएड में भी नाम लिखा रहे हैं कि इधर टीचर हो जाएंगे, उधर एमए में भी पढ़ रहे हैं। अब 20-25 बच्चों के रिजल्ट हम लोग रोक रहे हैं, हर साल और हंगामा होता है, रिजल्ट पेंडिंग है, ये है तो वो है। कभी हिंदी में भी कर रहे हैं, उर्दू में भी कर रहे हैं, दूसरा मिला उसमें भी कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, डिग्री थोक में जमा कर रहे हैं। इससे सीरियस स्टूडेंट को चिन्हित करने की जरूरत है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। That is one of the problem, that the reason why the quality, poor quality of education is there. हम जो इम्पार्ट कर रहे हैं वो इम्बाइब होगा कब तो? Mushrooming of the colleges without going into the details. Induction of the new courses, induction of the new process, induction of the new methodology without preparing for the same. हम लोग कानून भी देश को उसी तरह से बनाते हैं, बगैर जनता को तैयार किए हुए हम कानून बना देते हैं। जनता समझती कि क्या ये लागू हो सकेगा?
अभी आप एक घटना जानते होंगे, पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सड़क पर उतर करके किरण भी दिया, बोले हेलमेट पहनो। सरकार का कहना था कि मैं 6 महीने लोगों को तैयार करूंगा, उनको एडुकेट करूंगा, सबको इंश्योर करूंगा कि those who purchase 2 wheelers they purchase also the helmet, then we will infuse it, then we will induce it, then we will introduce. बोले नहीं, हमारा भी चला हुआ है। Sometimes the decision makers are whimsical, arrogant होते हैं, vindictive approach से काम करते हैं, उसके चलते ही परेशानी होती है। Poor learning outcome in elementary and secondary levels. स्कूल के नाम पूछे जाते हैं, मीडिया में आप देखते हो, शिक्षक से पूछा जाता है अंग्रेजी में महीनों के नाम लिखो, नहीं लिख पाते। आप लोग देखते हो टीवी, किस स्कूल में आप मैडम पढ़ा रहे हैं तो स्कूल का भी नाम लिखो। अगर SNSRKS का अगर पूछ देगा हम समझते हैं शायद ही कोई छात्र बता सकता। शिक्षक भी